So good morning everyone. I hope the sound was not going before. So good morning everyone, and today we are gonna talk about finding the odd man out. Good morning Shaili. Welcome everybody in our live session. Welcome everybody in our live session. So today we are gonna talk about finding the odd man out, which is a very important topic. Which is a very important topic as well as a very easy topic. You should think about this topic that you should get full marks from that particular thing. Good morning Sumitra, good morning everybody. Welcome in our platform. Welcome in our platform. Welcome in our platform. Great. So you see, I think everything is fine now with the video and audio combination. We are back again. Okay. Fantastic. So we are working for few of the students. So in that time, I'd like to tell you few of the things, students. देखिए, यहाँ पे जो slide है. So the courses which we offer, I hope you can see it from there. SET, GATE और CSIR NET का जो aptitude section है, we are gonna cover those things which we offer generally. And now a very new course is there for you students. MH SET आने वाला है. MH SET के लिए crash course है. You got the notification already. So those who are interested, you can enroll for that particular course. Okay. So देखिए, these are the students who has qualified MSc 2020. So the upcoming week students, वहां पे MH सेट के ऊपर एक वीडियो सीरीज आएगा. MH सेट के ऊपर एक वीडियो सीरीज आएगा जहां पे पेपर एनालिसिस होगा और कौन सी टॉपिक से कितना मार्क्स आता है. Not only that students, there will be a perfect strategy that how to score a handsome marks in part A. Okay? तो एक स्ट्रैटेजी होगा स्टूडेंट्स और कटअप कितना रहता है सब कुछ लेकर आप अगर वो वीडियो फॉलो करोगे, ज्यादा नहीं होगा, वीडियो का लेंथ 8 to 10 minutes, we will try to do that. तो उस वीडियो से आपको क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, that will be a series. The most important thing, that will be a series. There will not be one video, so many videos will be there. सीरीज पे रहेगा वीडियो और वो 8-10 वीडियो जो होगा उनमें से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगा that will be precise, that will help you anyway. So many set examinations are coming. So you see student, so those are the people who has qualified the examination. Then today's topic student, today's topic finding the odd one out or finding the odd man out. It's a very important topic. Why so? Because this topic is common in every type of examination. This particular topic is common in every type of examination. If you take the question paper of CSIR NET, you will get the questions from there. Finding the odd man out. Okay. And also if you take the questions papers of GATE, you will get sometimes they're asking you question from that particular topic. You just take the SET examination and in the SET examination it is also there. And not only that student, any kind of government examination, whatever is happening in India, there you will find such thing. And not only that, in the interview question also, people are asking such things throughout the world. So you can see the importance of such thing is very much. So rather we will invest few of our time in such things. Because if you will go for any job, आपको जो इंटरव्यू करेगा वो रीजनिंग से ही बहुत सारा आता है. ठीक है, तो चलते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पोर्शन. तो देखिए नेक्स्ट पोर्शन पे जो होगा इस चैप्टर पे डायरेक्टली वी विल स्टार्ट क्वेश्चन. क्यों? फाइंडिंग द ऑड मैन आउट, इसका मतलब है स्टूडेंट, देखिए जितना चीजें हैं उनमें से डिफरेंस कौन है, जितना चीजें हैं उनमें से डिफरेंट कौन है. अगर आप एक सुबह जा रहे हो मॉर्निंग वॉक पे एंड यू हैव ए लाइक फूड स्टॉल जहां पे कुछ फ्रूट बिक रहा है, बहुत सारा फ्रूट्स है, फल है, उन फल से शायद सब कुछ बिक चुका है, एंड आर पे गए हो आप,
और वहां पे क्या है स्टूडेंट्स कि 4 बनाना है और 1 एप्पल है, 4 बनाना है और 1 एप्पल है, तो वहां से और किसको लगेगा? ऑफ कोर्स द एप्पल इज ऑड देयर, राइट? So you need questions to read this particular chapter. You need questions to read this particular chapter. So again, we are starting this great session where not I'm not gonna teach you, but we are having an interaction. आप question का answer करोगे, then we will discuss about the things. So I hope you are ready. Let me know in the comment section. बताइए, are you ready to answer this question fast? आज जो competition होगा, कौन कितना अच्छे से जल्दी कर सकेगा? And I'll write down the name कौन अच्छे से कर रहा है. Whoever is going to tell me the answer first, the first people, we are gonna collect the name of them. We are gonna collect the name of them. Good morning, Pradnya. Do you have everybody with us? Do you have everybody with us? Let us know who is watching. Let us know few of the names, as we had a great communication from last few days. So you do have good morning Shaili, good morning Shumitra, Rupali, Manjari, I'm uncertified, Shraddha, welcome everybody. So you see, let's start our session. We have everybody for this competition. Let's see who will be the first person to answer these questions. Okay, so chaliye dekhte hain. The first question is there for you. Bataiye, what will be the answer? Bataiye, which answer will be the correct one? The time starts now. The time starts now. What will be the correct one? Let us know. Choose the number that is different from the rest of the numbers. Choose the numbers which is different from rest of the numbers. Which one is the answer, student? You took 1 minute, no answer yet. You took 1 minute, no answer yet in such an easy question. Bataiye, what will be the answer? 173. Somebody is saying 173. Somebody is saying 173. Somebody is saying A. What will be the correct answer? Let us wait. Somebody is saying 147. So many people are doing this, and I would like to request you, please share this link. Please share this link with your friends. Please share this link with your friends. Please share this link with your friends. Again and again, I am telling you. It's nothing, just we are gonna learn together. It will be a funny thing. Share कीजिए दोस्तों के साथ. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर. सम ऑफ ऑल द नंबर्स आर 11. फैंटास्टिक. सो देखिए, इतना इजी क्वेश्चन है, राइट? इतना इजी क्वेश्चन है, बट वी कैन स्टिल गेट डिफरेंट आंसर. B will be the correct answer. B will be the correct answer. Why so? Why so? Let me show you. Why so? Let me show you. Is that going to work? Yeah, fantastic. Okay. So let me show you, student. देखिए, यहाँ पे the first number is 128. So this is one of the type of thinking about the numbers. This is one of the type of thinking about the numbers. Whether the question is from finding the odd man out, or the question is from number analogy, or the question is from what we have done last day. What we have done last day, students? Coding, decoding. जहां पे भी आप पढ़ाई करो, a very important tool is digit sum. और डिजिट सम क्या होता है स्टूडेंट? डिजिट सम जो होता है इन सबका एडिशन. तो देखिए 1 + 2 + 8, दिस इज 11. इफ यू थिंक अबाउट द डिजिट सम, इसका जो डिजिट सम आएगा स्टूडेंट, देखिए 1 + 4 + 7 विच इज 12. मतलब बी का डिजिट सम आ गया 12. 1 + 6 + 4, इसका अगर डिजिट सम निकालोगे आप तो आपको आ गया 11.
एंड 1 + 7 + 3 इसका भी अगर आप डिजिट सम निकालोगे तो आपको आ जाएगा 11। तो देखिए कि ऑल द नंबर्स जिसका सम आ रहा है 11 लेकिन एक का आ रहा है 12। थैंक यू रूपाली, थैंक यू। आई एम अनसर्टिफाइड। गुड मॉर्निंग प्राची, वेलकम इन आवर लाइव सेशन। तो देखिए द आंसर विल बी बी। दिस इज द ऑड थिंग्स आउट ऑफ दिस। द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन सेटअप था वो इस सोच को लेकर किया था। एक्चुअली ये कोडिंग था, एक कोड किया था, आपने क्या किया, डिकोड किया, उसको सोच को पकड़ा। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हु विल बी द फर्स्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। बताइए which will be the correct answer, student? I can only wait for your answer, and I can assure you whoever is solving it right now will get help in the examination. Whoever will solve it right now will get help in the examination. So who was the first person last time? Let me see. Wait. Who was the person? First answer, Manjari, no. 173 will not be the thing. Shumitra said A, no. I am uncertified. Then Madhuri. So I am uncertified was the person to give the last answer. First. He was the first people. We don't know. I am uncertified. So that person was the first person to give the answer. Very good. What will be the answer? The only problem is you are taking time. Shyly gave the answer. Do not tell the reason. Do not tell the reason. Do not tell the reason, please. Do not tell the reason. All other places are named. I am uncertified. I am not gonna reveal the answer right now. Can't see question clearly. Aparna, please quality को high कीजिए. वीडियो का क्वालिटी, दिस इज HD, वी आर प्रोवाइडिंग यू HD क्वालिटी। हमारा वीडियो के आपके 1080p भी मिलता है, सुपर HD है। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली नेट के कनेक्शन के ऊपर ऑटो हुआ है, आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। पीपल आर सेइंग ए। शाइली सेड 4, एवरीबॉडी इज सेइंग A. Yeah, I am uncertified, no issue. But since this is a competition kind of thing, so we don't want the reason right now. See, people are saying A, C, D. What will be the answer, students? देखिए इतना इजी चैप्टर है फाइंडिंग द ऑड मैन आउट, लेकिन उस सोच को पकड़ना कभी कभी मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। एग्जाम के टाइम का भी मैटर रहेगा, तो अगर नहीं आएगा आप चले जाओगे दूसरे क्वेश्चन पे। एवरीबॉडी इज सेइंग ए। Shraddha, only people, Sonali, the Sonali was the person, Shaili was the person, Shaili Sonar was the person. I just combine the name and make it Sonali. Anyway, Shaili Sonar was the person to give one answer which was 4. Other than that, everybody gave other answers. Let us intervene and let us try to understand. Already we got so many options. देखिए, below are the given names of 4 cities. I am uncertified. आपने बोला हर एक सिटी का नाम है, लेकिन पहला वाला सिटी का नाम नहीं है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक जो है वो किसी ना किसी सिटी का नाम है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना होगा, नहीं तो रीजनिंग गलत हो जाएगा। फर्स्ट नेम देखिए जरा, यहाँ पे P है। जब भी किसी सिटी का नाम आता है इंडिया पे ज्यादातर होता है कोई पूर। दिस इज ओल्ड स्ट्रेटेजी, बहुत पुराना एक चीज है। दिल्ली, कानपुर, लाहौर, परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे बहुत पुराना एक चीज है कि जो नेम्स है वो पूर हो सकता है। तो P अगर रहेगा, U है, R है, तो कोई पूर हो सकता है। देखिए A वाला जो ऑप्शन है J है उसमें, बोलिए क्या कौन सा नाम है? जोधपुर, रूपाली, थैंक यू।
तो जिन लोगों ने बोला था कि पहला वाला कोई सिटी का नाम नहीं है, देखिए दिस इज अ ग्रेट सिटी, सिटी ऑफ जोधपुर। जोधपुर के बाद आ जाता है ऑप्शन बी पे, क्या है? फिर से पी है, यू है, आर है, के है, ए है, एन है। व्हाट विल बी द ऑप्शन? ऑलरेडी सेड कानपुर। ठीक है ना, कानपुर आ गया स्टूडेंट, जोधपुर कानपुर। दिस इज वेरी वेरी इजी, दिस इज वेरी वेरी इजी। दिल्ली, उसके बाद दिल्ली के बाद आ गया दिस थिंग which is again so many of you got the answer, which is Lahore. अब बताइए जरा कौन सा होगा odd one out, कौन सा होगा odd? Everybody got wrong answer. Shaili was the winner of that question. कैसे सी होगा रूपाली? जोधपुर कानपुर दिल्ली इज फ्रॉम इंडिया, लाहौर इंडिया का नहीं है। कैसे सी होगा? द आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। यहां पे बोला है फाइंड द ऑड मैन आउट, इन चारों में से कौन सा थोड़ा सा हटके है, डिफरेंट है। The only person who gave the correct answer first was Shaili. Now Swati is also saying that D is correct. Rupali, why you keep saying Delhi? Manjari, why you keep saying C? बताइए, क्लियर कीजिए, क्या हो गया आज? वो मोहल का कहा है कि हर एक का आंसर अल्फाबेट से लिए, तो मतलब क्या बताना चाहते हो रूपाली आप? देखिए रूपाली, दैट इज ओके, यू आर थिंकिंग अबाउट JKL, बट द थिंग इज यहां पे बोला है सिटीज। सोच को सोचिए कि सोच क्या है। सोच है कि 4 सिटीज है, उन सिटीजों में कौन सा थोड़ा डिफरेंट है? सोचिए जरा, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द नेम्स। ऑड वन आउट। आपको देखिए नॉलेज जो है ना, डू नॉट कंसिडर दोस नेम्स विथ लेटर्स, उसके अंदर भी घुसना पड़ेगा, कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि जोधपुर आपको जानना पड़ेगा। रीजनिंग के लिए नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज बताइए, बेसिक साइंस बोलिए, एज आई हैव टोल्ड यू इन द फास्ट वर्ड एनालॉजी चैप्टर। तो देखिए लाहौर, जोधपुर, दिल्ली, कानपुर, इसमें से तीनों जो जगह है वो है इंडिया का, और लाहौर जो है वो हो गया पाकिस्तान का। सो दैट मींस दैट विल बी द ऑड वन। आई होप यू गॉट इट, बट नेक्स्ट टाइम ज्यादातर राइट आंसर आना चाहिए। शाइली वॉज द विनर फॉर दिस सेक्शन। तो वन क्वेश्चन वॉज गिवन आंसर्ड बाय आई एम अनसर्टिफाइड, उसके बाद शाइली। Let's go to the next question. Let us see who will be the first person. This is a great challenge for you. देखते हैं जो इस क्वेश्चन को कर पाएगा, you will get a special credit. That will be the special thing. लेकिन this is a great challenge for you. देखते हैं आप में से कितने को आता है। बताइए। I hope the question is clear. आप देख सकते हो कि क्वेश्चन क्या है। बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। इन पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट? वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर। वन मिनट वेंट, 1 minute ओवर। देखते हैं टाइम कितना जाते हैं। आपका प्रैक्टिस जो करेंगे आप, 90 सेकेंड्स लीजिए, 1 minute 30 सेकेंड्स, उनमें से करने का ट्राई कीजिए, फिर 1 minute में आइए।
कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स? कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? People are saying Mahesh. Welcome Mahesh. Mahesh Rao is saying 2. Okay, let us see. Kiranjit is saying C, B, D, A, B, C, D सब आ रहा है, सब आ रहा है. देखते हैं, अब बताइए कौन सा होगा आंसर. शेयर कीजिए लिंक को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. द आंसर में सब आ रहा है, ए बी सी डी. ओके, श्रद्धा, स्वाति, शाइली सेड बी. लॉजिक क्या होगा? नाउ क्वेश्चन इज ओवर. लॉजिक बताइए, इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक बताइए स्टूडेंट्स. क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा आ गया, चारों ऑप्शन आ गया, कोई तो एक ठीक होगा, चारों में से कोई तो एक ठीक होगा, तो मतलब वी गॉट आवर आंसर एनीवे, बट वी नीड द रीजन. रीजन क्या है? कोडिंग में जो सीखे थे हम लोग यस्टरडे, उसका नॉलेज लगेगा. कोडिंग डिकोडिंग में हम जो सीखे थे उसका नॉलेज लगेगा फाइंडिंग द ऑड मैन आउट पे. दैट्स व्हाई आई चूज दिस क्वेश्चन. देखिए कि पूरा नॉलेज कैसे कनेक्टेड होता है. लॉजिक बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर लॉजिक. लॉजिक क्या है? ओनली सी इज गोइंग रिवर्स एबीसी. आई डिड नॉट गेट योर लॉजिक किरणजीत, एक्सप्लेन. ओनली सी इज गोइंग रिवर्स एबीसी. अच्छा, समझ में आया आपका लॉजिक? देखते हैं सर, बाकी सबका नंबर ऑड है. फैंटास्टिक, आई एम अनसर्टिफाइड. फैंटास्टिक, गुड मॉर्निंग रोहित. आई एम अनसर्टिफाइड. फैंटास्टिक. देखिए कोडिंग का लॉजिक है. इफ का कोड कितना है बताता हूं मैं आपको. देखिए हम लोग ने जो सीखा था कोडिंग डिकोडिंग में, वो कैसा इस पे काम आएगा हमारा नॉलेज. पहला ऑप्शन है एफ एल आर. स्टूडेंट, एफ का रैंक क्या है? एफ का रैंक क्या है? हम पढ़ाई किए थे, देखते एफ का रैंक क्या है. बताइए एफ का रैंक क्या है? एफ का रैंक क्या है? एफ का रैंक क्या है? 6. वेरी गुड. बताइए कैसे निकलता है एफ का रैंक? ई का है 5. इजोटी, याद कीजिए इजोटी जो था हमारे पास, that was the tool to find out the rank 5, 10, 15, 20 और 25. तो देखिए ई के बाद आता है एफ, मतलब 6. एल का रैंक क्या है? एल का रैंक क्या है बताइए? एल का रैंक क्या है? एल का रैंक क्या है स्टूडेंट? एल का रैंक क्या है? अगर जे का 10 है तो एल का क्या है? आई जे के एल. आई जे के एल. तो क्या होगा? जे के बाद के और एल, मतलब 12. आर का रैंक क्या है स्टूडेंट? आर का रैंक क्या है? जल्दी कमेंट करना होगा. आई डोंट नो व्हाई योर कमेंट इज कमिंग आफ्टरवर्ड्स. मे बी देयर इज सम नेटवर्क इशू. वेरी गुड. अब बताइए एल आर का रैंक क्या है? आर का रैंक क्या है? बहुत इजी है. ओ का है 15. आर का क्या है? ओ पी क्यू आर. ओ के बाद पी क्यू, उसके बाद आर. वेरी गुड. 18. तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? देखिए इसका जो डिफरेंस है, दिस इज +6 और +6. तो देखिए जरा कैसे हमारा कोडिंग वाला नॉलेज काम पे आया है. अब देखिए के क्यू डब्ल्यू, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स? के क्यू डब्ल्यू. के का रैंक क्या है? आई जे के 11. आई जे के 11. क्यू का रैंक क्या है? क्यू का रैंक क्या है?
MNOPQ, वेरी गुड। OPQ, Q का हो गया 17 और W का क्या है, स्वाति सेड, W का हो जाएगा 23। इसमें भी देखिए कि +6 का एक अंतर है, इसमें भी +6 वाला अंतर है, राइट। चलते हैं ऑप्शन PIB पे। PIB स्टूडेंट, PIB, P का क्या है, O के बाद आता है P। O अगर 16 है तो P कितना होगा, O अगर 15 है तो P कितना होगा, 16। ठीक है। I का क्या है, I का क्या है, सबको पता है, I होता है 9। और B का क्या है स्टूडेंट, देखिए B हो जाता है 2। तो देखिए जरा यहाँ पे जो 6 वाला अंतर है उसमें से इसका कोई सिमिलरिटीज नहीं है, उल्टा चल रहा है ये, राइट। उसके बाद आ जाता है CIO। अगर CIO में भी ये फॉलो करता है तो ये हो जाएगा ऑड वन आउट। तो CIO क्या होगा स्टूडेंट, CIO, ठीक है। C का क्या होता है स्टूडेंट, 3। I का क्या होता है स्टूडेंट्स, 9। O का क्या होता है स्टूडेंट्स, 15। मतलब +6 मतलब सबका है एक सिमिलरिटीज, लेकिन ये वाला जो चीज है वो भाई साहब थोड़ा सा हटके है। मतलब आवर आंसर विल बी C फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन किसका आंसर राइट है। ऑफ कोर्स वी डू नो आई एम अनसर्टिफाइड जो हो आप, आपका नाम आप रिवील भी कर सकते हो, आप जो हो आपका दोनों आंसर आ गया करेक्ट विद द परफेक्ट लॉजिक। आंसर तो बहुत सारे आए थे लेकिन आई एम अनसर्टिफाइड आपने लॉजिक के साथ आंसर सही बताया। रूपाली, वेरी गुड। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे C जो हो जाएगा ऑड वन आउट। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, समझ में आया, बताइए, डिड यू गेट दैट पर्टिकुलर कंसेप्ट? Whatever we have learned in coding and decoding, we have applied this knowledge to give the correct answer. Okay? So let us know in the comment section, comment करके बताइए कि जो आपने सीखा वो समझ में आया कि नहीं आया। Very good. Okay. Thank you so much, thank you so much. Let's go to the next question. Question number 4. Who will be the first person to answer this question? बताइए कौन सा होगा आंसर? I'm waiting for your comment students. कौन सा हो जाएगा आंसर बताइए। Which one is different from other numbers? जो अलग सा नंबर है वो कौन सा है? एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट मैंने जो बोला था आपको आज शेयर करना है, 6K को छूना है। आप में से सही करके बताइए कौन कौन आप हो जो शेयर किए हो दोस्तों के साथ। और सिर्फ शेयर करने से नहीं होगा, भरवाली बोलिए क्योंकि यहाँ पे आप बहुत कुछ आएगा। रूपाली said D, she was the first person to say D. Let us check who will be the winner of that question. Shaili said D, Swati C, I am uncertified A. Why so many different answer? तो मतलब जो है गलती हो रहा है, हमसे गलती हो रहा है। लॉजिक जो है कुछ अगल बगल पे जा रहा है। Multiplication of first and last number. रूपाली, what you wanted to say? रूपाली आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि देखिए ये वाला जो एग्जाम होता है ना, इसमें जो एप्टीट्यूड आती है, दे आर वेरी सिंपल माइंडेड, यू नीड टू डू दैट। आप जो बोल रहे हो 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 10 होगा, 3 7 21, 5 5 25,
9 9 से 81, तो क्या हुआ? I did not get anything. I did not get any reasonable matter there. Rupali, if you tell me again, what did you find? Swati got D, Manjari got C. तो A, B, C, D चारों ऑप्शंस आ गए. A, B, C, D चारों ऑप्शंस आ गए. और लॉजिक क्या है आपका? देखिए ऑप्शन कौन सा होगा? अच्छा, वाओ, fantastic Rupali, like the way you got, that was fantastic. Like the way you got, that was fantastic. तो देखिए रूपाली got कि the answer will be D. क्यों? क्योंकि उसने बोला कि रूपाली ने बोला कि रूपाली आपका आंसर फिर क्या आ गया? D, राइट? कैसे? कि 5 2 जा 10 और बीच में क्या है? 10. 5 2 जा 10 और बीच में क्या है? 10. 3 7 जा क्या है? 21, बीच में क्या है? 21. वेरी गुड, वेरी गुड. तो देखिए 5 5 जा 25, बीच में आ गया 25. ऐसे करके बोलना होगा. इफ यू से द नॉर्मल थिंग्स विल नॉट हैपन. ऐसे क्लियरली बोलना होगा. 9 9 से 81, लेकिन बीच में 81 नहीं आ रहा है. बीच में 81 नहीं आ रहा है. ठीक है ना? तो देखिए दिस इज वन ऑफ द ग्रेट क्वेश्चन वी हैड एंड वी हैड अ ग्रेट रीजन. आई एम अनसर्टिफाइड. आपने क्या बोला? आपने बोला आर ऑड प्राइम. सम ऑफ ऑल अदर नंबर्स आर ऑड प्राइम. आपका आंसर क्या है? आई एम अनसर्टिफाइड का आंसर क्या है? आपने बोला कि 5 + 2 + 7 is 1. 5 + 2 + 1 is 8. 7 + 3 10, 13, 15, 17, 33. प्राइम तो नहीं है लेकिन ऑड है. प्राइम तो नहीं है लेकिन ऑड है. आई एम अनसर्टिफाइड. ठीक है ना? तो आप ओ वाला रीजनिंग भी लगा सकते हो, लेकिन आंसर डिफरेंट आ जाएगा. आंसर डिफरेंट आ जाएगा. तो दिस क्वेश्चन वाज, द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रूपाली. द विनर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रूपाली. So Rupali got the correct answer as D. Rupali got the correct answer as D, and her logic was fantastic. So we should go with option D. Okay? तो option D जो होगा, प्रज्ञा A होगा. सर I got your logic. प्रज्ञा I am uncertified. आपको जो बोलना है इसका अगर साम ले लेंगे हम तो वे आ जाएगा even, A आ जाएगा odd, odd and odd. But we had a great, much more powerful logic. यही प्रॉब्लम है फाइंडिंग द ऑड मैन आउट का कि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज अराइज करते हैं. आप किसी एक पॉसिबिलिटीज को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत. लेकिन प्रॉब्लम एक है स्टूडेंट्स कि आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर का सोच क्या है. देखिए रूपाली ने जिस सोच के साथ इस आंसर को किए हैं, दैट मींस द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट वाला मल्टीप्लिकेशन जो है उससे मिडिल नंबर आ रहा है. इससे ही एग्जामिनर सेट किए हैं क्वेश्चन को. तो अगर आंसर आएगा तो आंसर विल बी डी. ठीक है ना? आंसर ए नहीं रहेगा. तो उस वक्त क्या आ जाएगा? आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो आपको कैसे समझ में आएगा ये सब चीजें? और से क्वेश्चंस को करना पड़ेगा. आई नो लॉजिकली आपका जो आई एम अनसर्टिफाइड या फिर प्रज्ञा का जो लॉजिक है कि जो साम कर रहे हैं हम, सर इसका आ रहा है 8, इसका आ रहा है कुछ 13, इसका कुछ आ रहा है 17 और इसका कुछ आ रहा है 33. तो हर एक है ऑड और एक है इवन. इसमें से ए भी आंसर कर सकते हो आप. लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है वो लॉजिक रूपाली ने बोला है कि लास्ट और फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करके देखिए मिडिल वाला नंबर आ गया. मंजरी देखिए 5 × 10 कितना होता है? 5 × 2 हो जाता है 10. मिडिल में 10 है. ऐसे करके इफ यू सी यू विल गेट द अदर ऑप्शन. ठीक है ना? चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5.
देखते हैं किसका आंसर सही है, बताइए कि किसका आंसर है सही। कौन सा आंसर होगा करेक्ट? यही तो प्रॉब्लम है ऑड मैन आउट का, कि आप कौन सी लॉजिक से सोच रहे हो और क्वेश्चन सेटर का लॉजिक क्या है। Sumitra's logic said the answer must be C. Sumitra's logic said the answer must be C. Everybody is saying C. Sumitra was the first person to give the answer. Okay, Sumitra was the first person. देखिए, this is very similar like the last question. This is very similar like the last question. Sumitra is telling the logic also. Very good. देखिए 5 और 1 जो है, सुमित्रा आप जो कर रहे हो सेम थिंग है, सेम थिंग है, राइट। जो लास्ट वाले क्वेश्चन था वो क्या है, था मल्टीप्लिकेशन, ये है एडिशन। वेरी गुड सुमित्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट मी राइट हियर, इट विल बी गुड फॉर यू टू सी। 1 + 5 हो जाता है 6, ठीक है। 1 + 6 हो जाता है 7, ओके। और उसके बाद 2 + 3 हो जाता है 5। मतलब मिडिल में जो है 4 वो नहीं आ रहा है, मिडिल में जो है 4 वो नहीं आ रहा है। और 5 + 2 अगर करोगे आप स्टूडेंट तो आ जाएगा 7। दैट मीन्स एवरीथिंग इज फॉलोइंग द रूल एक्सेप्ट दिस C1, एक्सेप्ट दिस C1, एक्सेप्ट दिस C1। तो देखिए डिजिट सम वाला एक रूल है, लेकिन डिजिट सम से भी ऊपर कुछ रूल्स है। जैसे अगर एक वाला ऐसे रूल्स है तो डिजिट सम का कोई जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ फाइंडिंग द ऑड मैन आउट रूल। वो क्या है कि वो डिजिटों से क्या आप कोई डिजिट को फॉर्म कर सकते हो, तीनों या 4 जो भी डिजिट है उन डिजिट में से अगर आप बीच का कोई डिजिट फॉर्म कर सकते हो और वो रूल अगर काम कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर का क्वेश्चन देने का तरीका वो ही था। जो डिजिट सम वाला रूल मैंने पहले बोला दैट वाज फॉर आर्बिट्ररी नंबर। अगर कोई भी कुछ बुरा नंबर दे दे जिसमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं है तो यू गो फॉर द फर्स्ट रूल व्हिच आई हैव सेड। समझ में आ गया? अगर जो नंबर्स है उनमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, आई एम अनसर्टिफाइड, आपको बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं, अगर उसमें कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है देन यू गो फॉर डिजिट सम। लेकिन उसके पहले नहीं, पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या सिमिलरिटीज है, अदरवाइज यू विल गो फॉर डिजिट सम। कुछ भी एक रीजन करके आप बता दोगे कुछ है डिफरेंट आंसर, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा डिजिट सम आएगा एंड पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर फॉर यू। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, अगेन ए चैलेंज फॉर यू। इस क्वेश्चन में जिसको आएगा विद द परफेक्ट लॉजिक यू डिजर्व अ क्लैप, ओके, यू डिजर्व अ थम्स अप फ्रॉम मी। तो इस क्वेश्चन को आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ये वाला क्वेश्चन जिसको आएगा, so Shumitra was the winner of last question. Shumitra was the winner of last question. Rupali was the winner of that question before that. So everybody, Shaili, Shumitra, Rupali, everybody got one answer, but I am uncertified was winner of 2 questions. Manjari, Shraddha, thank you. Shraddha is the person to give the answer this time. Shraddha आपका C पहला क्वेश्चन का है या फिर इस क्वेश्चन का है? श्रद्धा का सी इस क्वेश्चन का है या फिर पहला क्वेश्चन का है? सबने सी बोला, आई एम अनसर्टिफाइड। और प्रज्ञा आपके आंसर आया डी, आपके आंसर आया डी। ओके, पहले आई एम अनसर्टिफाइड और प्रज्ञा आप दोनों आपका लॉजिक बोलिए। पहले आई एम अनसर्टिफाइड, मंजरी, श्रद्धा, अपर्णा एंड रूपाली, एवरीबडी गॉट सी, फैंटास्टिक। Let us see. Shamiksha, Keram, welcome Shamiksha.
आपका आंसर भी आ गया सी, आपका आंसर भी आ गया सी, लेकिन आई वुड लाइक टू नो द रीजन फ्रॉम प्रज्ञा एंड आई एम अनसर्टिफाइड. I am uncertified and Pradna, hope you are writing down the logics. आपका लॉजिक क्या है बताइए, आपका लॉजिक क्या है बताइए. What will be the correct option? आप दोनों का डी आया है इसीलिए आपको बोल रहा हूं. I am uncertified. प्रज्ञा क्या है आपका लॉजिक? आपने कुछ लॉजिक लगाया ना, तो फिर बताइए कि क्या है आपका लॉजिक. तो क्या हुआ रूपाली? तो क्या हुआ रूपाली? 6 इंटू 3 18 है, ठीक है, लेकिन तो क्या हुआ? उसमें से क्या डिड्यूस होता है स्टूडेंट्स? द फर्स्ट पर्सन हु गेव द आंसर, आई मस्ट नो द नेम. आई थिंक इट वाज श्रद्धा एंड मंजरी. श्रद्धा मंजरी, आपका लॉजिक क्या है? श्रद्धा मंजरी, सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, लॉजिक क्या है आपका? लॉजिक क्या है बताइए. सिर्फ आंसर बताने से काम नहीं चलेगा, लॉजिक बताइए. एंड प्लीज हिट द लाइक बटन. आई होप, आज देख रहा हूं मैं कि ज्यादा लोग 6 बिकॉज इट इज ओनली 1 डिजिट नंबर. नहीं मंजरी, नो. देखिए लॉजिक स्ट्रांग होना चाहिए. पासवर्ड जब भी आप देते हो, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, कभी भी क्या बोलता है? दिस इज नॉट ए स्ट्रांग पासवर्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिक. देखिए पहला वो क्वेश्चन जो रूपाली ने आंसर बोला था और आई एम अनसर्टिफाइड ने बोला था, मैंने क्या किया था? रूपाली का आंसर को चूज किया था. क्यों? दैट वाज द स्ट्रॉन्गर लॉजिक. स्ट्रॉन्गर लॉजिक. सोचिए मंजरी, आपका लॉजिक तो ठीक है लेकिन स्ट्रॉन्गर नहीं है. स्वाति, अगर आपका डी है, क्यू डी है? ड्यू की है, क्यू डी है? रूपाली, आपका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया है. स्वाति, आप बताइए कि डी क्यू है? मंजरी, आप लोगों ने जो पहला आंसर दिया था सी, वो कैसे आए थे? आंसर बोलिए. सुमित्रा सिंह सर, ए एंड सी सेम है और बी और डी सेम है. नहीं सुमित्रा, आपने कुछ जो सोचा मुझे पता चल गया, वो नहीं है लॉजिक. स्वाति इज सेइंग दिस. फैंटास्टिक स्वाति. लेट अस सी, देखते हैं ठीक है क्या गलत. वेट अ मिनट, आई थिंक इट्स नॉट. नो, 2 3 6, 2 9 नहीं स्वाति, इसमें क्या सिमिलरिटीज है? 3 और 9 के बीच में 6 डिफरेंस है. तो सीरीज अगर होगा तो उसका बाद में 2 इंटू 15 होना चाहिए, 2 इंटू 12 नहीं. स्वाति, इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट करेक्ट. आपका जो लॉजिक है वो करेक्ट नहीं है. क्यों करेक्ट नहीं है? क्यों करेक्ट नहीं है? खुद सोचिए, खुद सोचिए कि क्यों करेक्ट नहीं है. So I'll wait for the answer this time. मैं नहीं बताऊंगा. लॉजिक आना चाहिए, तो सही लॉजिक आना चाहिए. स्वाति, जो सीरीज का अप्रोच लिए दैट वाज करेक्ट. आई एम गिविंग यू अ ग्रेट हिंट. सीरीज, हम सीरीज में जो करते हैं वो नॉलेज काम आएगा. एक तो देख लिया कि कोडिंग डिकोडिंग वाला नॉलेज कैसे काम आया ऑड मैन आउट पे, तो मतलब सीरीज वाला जो चैप्टर का नॉलेज है उसमें से भी नॉलेज अप्लाई होता है. दिस इज द क्लू. अब बताइए. नो,
9 2 18 प्लस 2 20 कैसे हो रहा है? वैशाली तैयारे is saying 24 क्यों? वैशाली is saying 24. वैशाली वेलकम. We are happy to see your comment. अब बताइए कि आपका लॉजिक क्या है? आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द लॉजिक. और प्लीज हिट द लाइक बटन. प्लीज हिट द लाइक बटन. एक फिंगर का ही काम है. प्लीज हिट द लाइक बटन. आई कैन सी सो मेनी पीपल आर हियर बट द नंबर ऑफ लाइक इज वेरी लेस. आई डोंट नो व्हाई. इफ यू एंजॉय द क्लास प्लीज हिट लाइक बटन. लाइक बटन को दबाइए और बताइए कि आंसर कौन सा है. क्यू है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्यू है आंसर. किससे मिलेगा लॉजिक आज बताइए. आई कैन वेट फॉर योर लॉजिक. मैं नहीं बताऊंगा. ओके स्वाति सिंह 2 into 3 6. देन टू इंटू थ्री 6. 2 plus 4 है 6. 3 plus 6 है 9. सुमित्रा क्या है आपका लॉजिक? सुमित्रा 2 plus 4 है 6. ठीक है. 3 plus 6 है 9. लेकिन 9 कहां पे है? सुमित्रा 9 कहां पे है? 9 कहां पे है? आपने जो बोला वो आप ए और सी सेम और बी और डी सेम बोल रहे हो. नहीं, ऐसे 12 आ रहा है आपका सीरीज में. वैशाली is saying 6 into 3 18. 6 into 6 36. रीतिका 1 स्किप करके 6s करेंगे. 6 into 1 6 into 3 6 into 4 6 into 5. वेरी गुड. 6 1 6 6 3 18 6 4 24 होना नहीं चाहिए. 6 5 30 होना चाहिए. 6 6 36 है. लेकिन सुमित्रा यहाँ पे देखिए 6 6 क्यों हो गया? आपका लॉजिक बहुत अच्छा है रीतिका. रीतिका आपका लॉजिक बहुत अच्छा है लेकिन मुझे वो आंसर नहीं मिला. सेटिस्फैक्टरी नहीं मिला. 6 का टेबल में सीक्वेंस 18 24 है. सती आपका कमेंट मैंने देखा. आपका कमेंट मैंने देखा. 2 multiplied by 9 into 9 plus 3. मैं बताता हूं आपका लॉजिक में क्या मुश्किल चीज है. देखिए 2 plus 4 हो गया 6. 9 हो गया. अब कहा है आपका कमेंट? 9 plus 3. नाइन प्लस 3 नहीं. स्वाति कैसे होता है आपका लॉजिक? अगर आप 6 से 3 को ऐड कर रहे हो बाद में आपको 18 से 9 को ऐड करना पड़ेगा. आप 3 से अगर 3 हर बार ऐड करोगे, आप 3 हर बार ऐड करोगे, पहले आपके 6 जो आया है उसके साथ आप 3 को ऐड किए हो तो आपका आ गया 9 मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है ना. तो 6 क्या है? 6 था पहला का आंसर. 2 into 3 जो आया था वो था 6. तो आप उस 6 से अगर 3 को ऐड करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको 18 से ऐड करना होगा, 9 से नहीं. दिस इज योर मिस्टेक स्वाति. आई होप यू गॉट इट. अगर आप 6 से 3 को ऐड करोगे, 6 से 3 को ऐड करोगे, इजी लॉजिक तो नहीं है लुपाली लेकिन बहुत ब्यूटीफुल लॉजिक है. स्वाति आई होप यू गॉट योर आंसर इज नॉट करेक्ट. स्वाति देखिए अगर 6 से आप 3 को ऐड करते हो तो नेक्स्ट टाइम पे 18 से करना पड़ेगा, 9 से करने से नहीं होगा. आंसर ऑफ द मल्टीप्लीकेशन तो 18 है. 18 के साथ 3 को ऐड करोगे तो आप 21 आ जाएगा स्वाति.
21 आ जाएगा, नॉट 12। सोचिए जरा फिर से। तो आई डिड नॉट गेट एनी आंसर फ्रॉम एनीबडी सैटिस्फैक्टरी, ओनली द ओनली पीपल जिसका आंसर रितिका, आई थिंक हर नेम वाज रितिका, यस रितिका पुरी। रितिका, आपका जो आंसर का लॉजिक है बहुत क्लोज था लेकिन नॉट करेक्ट। 6 2 multiplied by 3 is 6, 2 multiplied by 3 is 6। अब 18 क्या हो गया? कुछ नहीं, यहां पे हुआ है +1 और यहां पे हो गया है +3। फिर से लेते हैं +1 और +3, 3 + 1 हो गया 4, वैशाली आई विल गेट टू योर कमेंट आफ्टरवर्ड्स। देखिए 4 और इसका हो गया कैसा 9, 2 + 1, 3 + 1 +3 +3 हो गया 36। तो मतलब यहां पे सब आएगा, इस जो सीरीज है इस सीरीज का हर एक नंबर यहां पे है एक्सेप्ट द 24। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड जैसा, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिक। देखिए लॉजिक बहुत होते हैं, द एक्सेप्टेड होता है द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। अगर आप कोई मीटिंग में हो तो सजेशन बहुत सा आएगा, हर एक सजेशन इज ट्रू, हर एक सजेशन अच्छा सजेशन होता है, उसमें से जो सबसे अच्छा होता है उन्हीं को हम चूज करते हैं। ये सुमिता सी का आंसर होगा। लेकिन देखिए दिस लॉजिक इज वेरी ब्यूटीफुल। लॉजिक बहुत सारा है, कोई नहीं बोल सकता कि ओनली वन लॉजिक इज देयर, वन लॉजिक होता ही नहीं है। आपको ढूंढना होगा कौन सा है स्ट्रॉन्गेस्ट लॉजिक। वैशाली के लॉजिक से, वैशाली का क्या लॉजिक है? इन द टेबल ऑफ 6 24 comes to 4, the rest is different of 3, 6 1s are 6, 6 3s are 18, 6 1s are 6। आपका जो लॉजिक है वैशाली, लेट मी राइट, ठीक है, क्या मैं बताता हूं आपका लॉजिक में क्या है। 6 1s आपने बोला 6 है, अच्छे है। 6 3s आपने बोला 18 है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा दैट शुड बी 6, उसके बाद आ जाएगा 5, क्योंकि +2 हो रहा है तो 30 होगा। कहां से आ गया आपका 36? अगर आप 3 ऐड करते हो, 3, इफ यू आर एडिंग 3 विद दिस, दैट 6 6 36, तो 1 के साथ भी 3 ऐड करना चाहिए ना, 1 के साथ भी 3 ऐड करना चाहिए। आप क्यों तब 2 ऐड किए हो? वैशाली का लॉजिक सही नहीं है। वैशाली कैसे डिफरेंस 3 हुआ? 1 और 3 के डिफरेंस 2 है, द डिफरेंस इज 2, 2 है डिफरेंस, नॉट 3, 3 नहीं है। तो दिस विल बी द थिंग एंड आंसर होगा 24। वो लॉजिक सही नहीं है, आंसर सही हो सकता है लेकिन लॉजिक सही नहीं है। आई होप यू गॉट इट राइट स्टूडेंट। वैशाली आर यू कन्विंस्ड? सिक्स इंटू 6 क्यों होगा रूपाली? वेट, 6 इंटू 6 कौन सी लॉजिक से होता है? 3 + 3 is 6, 3 + 3 is 6। यहां पे 3 + 3 6 होता है, लेकिन पहले आप क्या लिया? 1 + 2 होता है 3, 6 नहीं, 1 + 2 होता है 3, ठीक है ना? गलती मत कीजिए, सिंपल चीजें है, गलती मत कीजिए। नो 6 इंटू 3 नहीं, फास्ट है 6 इंटू 1, फास्ट है 6 इंटू 1, ठीक है। सही नहीं है, सही नहीं है रूपाली, सोचिए जरा। 6 इंटू 1 फिर 6 इंटू 3, डिफरेंस आता है 2, ठीक है। जो भी है
द आंसर विल बी 24 और लॉजिक दिस वन इज द लॉजिक, ठीक है, द स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड जैसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम बेसिक साइंस, लेकिन क्वेश्चंस डाल दिया कहां पे, फाइंडिंग द ऑड वन आउट। फिर से आपका सब नॉलेज चेक होगा, सब नॉलेज चेक होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे आके। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर कौन सी होगा, व्हिच वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन बताइए। सुमित्रा वाज द फर्स्ट पर्सन टू से सी, स्वाति ने बोला डी। तो देखिए सुमित्रा, दिस इज फ्रॉम बेसिक साइंस, आपको ज्यादा साइंस में घुसने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन फिजिकल स्टेट वाला अगर आपको पता है तो भी होगा। सो दिस इज द क्लू, मैंने बोल ही दिया। लॉजिक क्या है स्वाति, लॉजिक क्या है? सुमित्रा आपने आयोडीन क्यों बोला, वाई आयोडीन, वाई? सुमित्रा आपने आयोडीन क्यों बोला? एवरीबॉडी इज सेइंग डी। रूपाली सी क्यू, आयोडीन क्यों बोला? Very good. I am uncertified. Hope you are from science. I do not know all about the I am uncertified. Again, you got the Vaishali. This is the problem, Vaishali. Fantastic. You got this logic. लेकिन मुश्किल क्या है, उतना ज्यादा घुसने का नहीं है। बाप रे बाप, आपने तो केमिस्ट्री पे चला गया। आर यू फ्रॉम केमिस्ट्री? आर यू फ्रॉम केमिस्ट्री? वैशाली, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। आप फिर से वो एक पॉइंट को मिस कर रहे हो। दिस एग्जाम इज नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जाम फॉर इंडिविजुअल। सर एक सब्जेक्ट पे आर्ट्स का जो स्टूडेंट होगा वो भी यही क्वेश्चन पे आंसर करेगा। मतलब क्या है, उतना घुसने का जरूरत नहीं है मेटल नॉन मेटल में। मैं भी सोचा था, लेकिन उतना घुसने का जरूरत नहीं है। फिजिकल स्टेट में रहिए, लाइक द वे मंजरी सेट, लाइक द वे वो आई एम अनसर्टिफाइड सेट कि जिंक जो है सॉलिड, आयरन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड इन नॉर्मल टेम्परेचर, बट मर्करी इज लिक्विड। So what will be the finding the odd man out thing? So mercury is liquid. So और mercury is the answer for that particular question, जिसमें क्या हो जाएगा, सब सॉलिड है। सुमित्रा आप वही मतलब साइंस वाले जो स्टूडेंट है इस क्वेश्चन का आंसर गलत देके आएगा। मतलब केमिस्ट्री का, खास करके केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है वो श्योरली गलत करेगा। आई एम क्वाइट कंफर्म, केमिस्ट्री का जो स्टूडेंट है वो श्योरली इसका गलत आंसर देके आ जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम के तरीका से, ठीक है ना? तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। मर्करी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना? आई नो दिस इज वेरी टफ कि जो सब्जेक्ट में रहता है उसको मेटल और नॉन मेटल भी आएगा, मेटल और नॉन मेटल ही आएगा, लेकिन दिस इज नॉट द थिंग, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एग्जाम पे जो क्वेश्चन सेटर दिया है, क्वेश्चन दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। वो बात दिमाग पे रखकर काम करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? अपर्णा सेठ सी, अपर्णा सेठ सी। अपर्णा आप सुने नहीं क्या? फिजिकल और लिक्विड स्टेट वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट, बताइए आंसर क्या है। सो वी आर वेटिंग फॉर योर आंसर, आंसर क्या है बताइए। सी। विकास ठाकुर, अपर्णा,
अपर्णा आपने सी को किसके लिए बोला? आयोडीन। अपर्णा ने सी किसके लिए बोला? विकास, रूपाली, शायली, तो तीनों ने ही सी बोला। एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। लॉजिक क्या है? लॉजिक बताइए। विकास ठाकुर was the first person to give the answer. Swati was the first person. स्वाति के बाद विकास ने बोला है कि कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन। लॉजिक बताइए, व्हाट विल बी द करेक्ट लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? लॉजिक सुनने में मजा आता है मुझे, क्योंकि कितना डिफरेंस होता है ना सोच में। ह्यूमंस आर एवरीबॉडी आर डिफरेंट, सोच भी डिफरेंट होगा, जरूर वही है, ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस है। सबका सी, अगर सी आ रहा है तो शायद सी ही होगा आंसर, लेकिन क्यों? लॉजिक बताइए कि क्यों होगा सी आंसर? व्हाई सी इज योर आंसर? सी आंसर क्यों है स्टूडेंट? हाँ, 7 + 2 9, 9 + 3 12। कहां पे हो आप? स्क्वायर ऑफ 7 इज 49। बढ़िया। लेकिन आप वो क्यों बोले? आप 7 + 2 वो चीज क्यों बोलते हो? 7 + 2 9, 9 + 3 12, वो क्यों जरूरत है? 7 + 2, अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं वही चीज बोलने वाला हूं डायग्राम से, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, I am uncertified said a reason. This is the first number 49, 81, 100, 4 नंबर्स है। याद कीजिए मंजरी, थैंक यू। याद कीजिए, आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई हैव टॉट यू नंबर एनालॉजी के टाइम पे आपको एक सजेशन दिया था मैं कि प्लीज घर में अप टू 30 तक स्क्वायर नंबर को याद रखिए। अप टू 30 तक स्क्वायर नंबर को याद रखिए। जिन्होंने भी याद रखा होगा उसको देखकर ही पता चल गया ऑल दिस थिंग्स आर स्क्वायर नंबर्स। ऑल दिस थिंग्स आर स्क्वायर नंबर्स। तो अगर ऐसा है 7 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 12 स्क्वायर, तो इसमें देखिए जरा 7 और 9 जो है उसके बीच में डिफरेंस है +2। 7 + 2, like I am uncertified told, fantastic, I am uncertified throughout the session। आप मैन ऑफ द मैच भी हो, और देखते हैं क्या बोलते हैं इसके बाद, एंड पे बोलूंगा। लेकिन द थिंग इज दैट 7 + 2 है 9, 7 + 2 है 9, और 10 + 2 है 12। मतलब +2 का डिफरेंस होना चाहिए हर एक चीजों के बीचों में, लेकिन यहाँ पे 9 + 2 जो 11 होना चाहिए था वो चीज नहीं है। मतलब इस पे कुछ प्रॉब्लम है। द प्रॉब्लम अपीयर्स हियर समवेयर। 100 में आके प्रॉब्लम हो गया, तो आंसर विल बी 100, which will be the odd man out. The 100 will be the thing. The 100 will be the thing. 100 will be the thing which is different. Aparna, thank you. Thank you, Manjari. Thank you, Aparna. Rupali. Thank you, everybody. No, Aparna, it's all right. So देखिए, so that was a very easy question, ठीक है? So that was not a real challenge. Anyway, I am uncertified. You got the answer. Fantastic for that. Let's go to the next question. देखते हैं क्या है। बहुत easy है। Tell me the answer first. This is easiest question. बहुत easy है, और ऐसा ही questions आएगा आपका एग्जाम पे। ऐसा ही questions आएगा आपका एग्जाम पे। There is no chance that so many difficult questions will come. So keep your brain cool. अच्छे से रखो ब्रेन को, और सीधे से समझो। सिंपल थॉट्स रहना चाहिए। थॉट्स को अगर डिफिकल्ट करोगे तो आंसर नहीं आएगा। स्पेशली साइंस वाले क्वेश्चंस को ज्यादा मत सोचिए।
सोचिए कि दिस क्वेश्चन नीड टू बी आंसर्ड बाय एवरी पीपल, तो क्वेश्चन का मतलब कुछ वैसा ही होगा। Swati got C. I am uncertified C. Rupali got C. Swati, fantastic. Now Swati also gave the answer 2 times. Shaili, I am uncertified. Rupali, Vikash. Shaili is saying A. Fantastic. Shaili got some different answer. But why Shaili? Why Shaili? Why you got a different answer? Vaishali Tayare is saying C. तो देखिए जरा आई एम गोना गेट, बिकॉज सर सब में +1 है। सुमित्रा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है लॉजिक। रितिका इज सेइंग सी, रितिका इज सेइंग सी, रितिका पुरी इज सेइंग सी। I am uncertified, you said, but GH is not +1. Shraddha, Wankhare. देखिए जो सेट वाला मटेरियल है, एज आई हैव टोल्ड यू कि सेट का हर एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस उस बुक पे है। ओके, आई हैव आल्सो फॉलोड दैट बुक, दिस इज अ ग्रेट बुक। वहां पे लिंक है, कमेंट सेक्शन पे जाइए, उस बुक को कलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो सिंस फैंटास्टिक, तो मंजरी गॉट सी, आई एम अनसर्टिफाइड। Rupali, alternative means by 1 letter. Very good. Very good, Rupali. Very good. देखिए यहाँ पे we do know एक्चुअली में होना था A B C D E F G, E F होना था, हो गया उल्टा। तो दिस इज आवर उल्टा लॉजिक, दिस इज आवर उल्टा लॉजिक कि एफ और ई एफ में ई एफ होना था, हो गया एफ ही। वेरी गुड वैशाली, वेरी गुड। देखिए डीई, वाह फैंटास्टिक, आई एम अनसर्टिफाइड, फैंटास्टिक। देखिए ई एफ होना था, हो गया उल्टा। जे के एल एम होना था, होना था क्या? जे के एल एम ऐसा था, हो गया क्या? जे एल के एम, मतलब उल्टा, फिर से हो गया उल्टा। तो सब हो रहा है उल्टा। या इधर पे भी देखिए, आर एस टी यू, आर एस टी यू होना चाहिए था, एस टी हो गया उल्टा, टी एस। वैसा यहां पे जी एच आई के, इसमें वो वाला सिमिलरिटी नहीं है। क्यों? बिकॉज जी एच उल्टा लॉजिक, राइट रूपाली? सो यू सी ABCDF GHIJ, तो GHIJ भी नहीं है और HI का भी ऑर्डर सिंपल है, उल्टा नहीं है। GHIJKL ऐसा होना चाहिए था, जो नहीं है, मतलब ऑड वन हो गया C, ऑड वन हो गया C, एंड दिस इज वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट। हाउ यू विल फाइंड कि रूपाली ने जैसा कहा, आई लाइक द उल्टा लॉजिक सर, तो रूपाली गॉट दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। वैसे रूपाली ने जब कहा था वो लॉजिक, मैंने सोचा था दैट वाज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो कौन सा लॉजिक स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो आपको समझना पड़ेगा स्टूडेंट। इसीलिए लॉजिक का क्वेश्चंस क्या होता है, कभी कभार गलती हो जाता है। गलती को ठीक करने के लिए एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वन a very easy question for everybody, a very easy question for you, ठीक है? which will be the answer, which will be the answer of that particular question? आंसर क्या होगा? क्या होगा आंसर, बताइए।
What will be the answer, student? I am uncertified A. Consecutive answers by I am uncertified. Fantastic. I am uncertified. If you reveal your name, that will be fantastic. We will call you by name as you are between us. So we can certify the name. So Swati is saying A, series of A, 1C by Aparna. Aparna, liver कैसा different हो गया? Liver में क्या चीज है कि different हो गया? Skull is bone, वैशाली, fantastic. बहुत सीधे सा बात है. मिशर पे जाइए. मिशर पता है ना, पिरामिड. हम लोग पिरामिड के बात किए थे, याद है आपको? ठीक है, तो मिशर पे जाइए स्टूडेंट्स. जो पिरामिड है, मॉमी है, अभी भी बोन उसमें बचा कुचा रहता है. वो स्कल अभी भी रहता है, लेकिन हार्ट, लिवर, लंग सब खो जाता है. दे आर सेल, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सेल्स रहता है उनमें से. तो बहुत सिंपल सा रीजनिंग है कि आफ्टर डेथ दोज विल नॉट स्टे, दिस विल स्टे. आफ्टर डेथ दोज विल नॉट स्टे, दिस विल स्टे. तो स्कल वो है, स्कल हर एक से डिफरेंट है. बहुत अच्छा रूपाली. हर एक इंटीरियर, ऑल आर इंटीरियर पार्ट, तो वैसा ही सब कुछ ही इंटीरियर है. सब इंटरनल ऑर्गन है. हाँ वो बोलिए, इंटीरियर तो सबको ही है. ठीक है ना. तो इंस्टीड ऑफ स्कल, तो देखिए क्या होता है. तो बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है कि स्कल जो होता है वो होता है. स्कल ऐसा रहता है. अगर आप बॉलीवुड का ओल्ड मूवीज देखे हो या फिर हॉलीवुड का जो घोस्ट वाला मूवी था, उसमें ऐसा स्कल दिखाते थे. स्केलेटन आ गया, ऐसा डांस कर रहा है. तो देखिए स्केलेटन इज डिफरेंट देन एवरीबॉडी. यू कैन नॉट फॉर्म द घोस्ट यूजिंग हार्ट, लिवर, लंग्स. दोज बिलोंग्स टू ह्यूमन बीइंग्स. तो क्या होता है स्टूडेंट, तो स्कल इज डिफरेंट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर फॉर यू. अब बताइए कि आंसर क्या होगा. दिस इज अगेन सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है. इतना इजी क्वेश्चन मैं तो कभी नहीं देखा, क्योंकि हर एक नाम जो है मेरा फेवरेट है. जियोमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री एंड मैथमेटिक्स मुझे बहुत पसंद है. तब बताइए आपको कैसा लगा इसका नाम देखकर, और कौन सा होगा आंसर. व्हिच विल बी द आंसर स्टूडेंट, बताइए. आई एम अनसर्टिफाइड से डी इज द आंसर. क्यों, व्हाई, व्हाई डी इज द आंसर. Vikas Thakur is again saying D is the answer. So this will be the 4th time or 5th time that I am uncertified is telling the answer first time. Manjari said D. Why? Vaishali said C. Vaishali, trigonometry क्यों different है? All other are part of mathematics. Fantastic. I am uncertified. देखिए इसी क्वेश्चन के साथ सेंचुरी कर दिया आपने और मैच का विनर बन गया आप. हो गया मैन ऑफ द मैच. तो देखिए क्या है, 4 ऑप्शंस है. ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिकोनोमेट्री जो है वो क्या है, वो एक पार्ट ऑफ ए सब्जेक्ट है. मैथमेटिक्स के एक टॉपिक्स का नाम है ज्योमेट्री, अलजेब्रा एंड ट्रिकोनोमेट्री. और मैथमेटिक्स जो है स्टूडेंट्स, वो खुद ही एक सब्जेक्ट है, खुद ही एक सब्जेक्ट है. तो those are topics of mathematics, but mathematics itself is a subject. So subject is a different other than the topics. So the different thing which is here will be mathematics. Mathematics क्या है, इनमें से odd है. Mathematics क्या है, very very good. Everybody को आ गया, सबको आ गया. मतलब मैथ सबको अच्छे से आता है, मैथ सबको सब अच्छे से आता है. A स्कल. Aparna, I think your video, you are quite back. Come to the live portion. We have already solved the question, Aparna. Fantastic. So the thing is that, देखिए, the answer is mathematics. Fantastic. So students, those are the question. I have choose few of the questions. जिन क्वेश्चन में हम क्या देखा कि फाइंडिंग द ऑड मैन आउट जो आता है वो वाला क्वेश्चन है. वो क्वेश्चनों में फिर से आपका बेसिक साइंस चेक किया जाएगा, आपका जनरल एप्टीट्यूड का नॉलेज भी चेक किया जाएगा. कैसे, जैसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें था क्या कि लेटर्स का कोडिंग जो है वो आपको जानना पड़ेगा. मतलब अगर कोई सोचे हो कि हम कोडिंग डिकोडिंग नहीं करके जाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हम ऑड मैन आउट करेंगे,
और क्या हुआ एग्जाम पे? एग्जाम पे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करके ही फाइंडिंग द ऑड मैन आउट आ गया। मतलब उस एक चैप्टर नहीं पढ़ाई किए थे आप, इसीलिए ए वाला चैप्टर भी छोड़ना पड़ेगा। आपको लगा कि जनरल नॉलेज जो है साइंस वाला मुझे नहीं चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं पढ़ूंगा उस टाइप को। उसमें से क्या हुआ, वर्ड एनालॉजी में या फिर इधर फाइंडिंग द ऑड मैन आउट में आपको बेसिक साइंस का क्वेश्चन दे दिया। क्या हो जाएगा, दोनों पोर्शन पे ही मार्क्स निकल जाएगा। तो हर एक चीज कनेक्टेड है, हर एक चीज कनेक्टेड है। एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करने का तरीका है स्मार्ट। You need to answer them smartly, then only you can able to get a good marks. ठीक है? So students, those are the topic. So this week we have covered the whole logical reasoning portion. आपका लॉजिकल रीजनिंग में जैसा है सिलेबस, उस तरीका से हमने नहीं पढ़ाया। हमने क्या किया, जो क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर्स का, उसका एक पार्ट किया लॉजिकल रीजनिंग का, और क्वेश्चंस कौन सी चैप्टर से आता है वो ऑब्जर्व करके I have taught the topics, जैसे कि आपको 8 से 10 क्वेश्चंस आ जाएगा। जो सीरीज हुआ है फॉर द दिस वीक, द होल वीक, तो उससे क्या हुआ है, वेरी गुड रूपाली। जनरल एप्टीट्यूड हर एक एग्जाम में रहता है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, आप सोचिए ना कि आप किसी चीज को पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, बोल रहे हो, दैट इज अ थिंग that has another kind of intelligence, that has another kind of qualities that you have, they are testing that qualities of you. But for general aptitude, they are just testing your aptitude, your reasoning, that those are your qualities, right? So those are tested in that section. तो थोड़ा सा स्मार्टली कीजिए। तो ए वाला मैं जो बोल रहा था स्टूडेंट, whatever we have covered throughout this week, word analogy, number analogy, उसके बाद आ गया वेन डायग्राम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आ गया आपका, बताइए, वेन डायग्राम हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट्स कंक्लूजन आ गया, और हमने दिखाया था आपको कि वेन डायग्राम को अप्लाई करके कैसे करना होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। उसके बाद क्या आ गया, कोडिंग डिकोडिंग आ गया, एंड फाइंडिंग द ऑड मैन आउट आ गया। तो वो जो 6 वीडियोस है, वो 6 वीडियोस क्या है, those are the videos from where you will get 8 to 10 question in your GATE examination. Manjari, I belongs to West Bengal. I am from West Bengal. I think you are also from West Bengal. That's why you have asked me this question. Okay. So students, देखिए, नहीं, I am not from Assam. I am from West Bengal, but northern part of West Bengal, which is very close to Assam. So geographically, I think my geography looks like an Assamese people. Okay, so yeah, thanks sir, it's really important for us examination view, examination के व्यू के सोचना पड़ेगा, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो। सर इज फ्रॉम बंगाल। द थिंग इज दैट, सोचिए कि जिस दिशा से आप सोच रहे हो, उस दिशा के साथ आपका एग्जाम का कुछ लिंक होना चाहिए। फिक्शनल अगर मूवी हो जाएगा, कि वो जो मूवीज होता है ना हॉलीवुड पे, एवेंजर्स आर गुड फॉर मूवीज, लेकिन आपका सोच एवेंजर्स नहीं होना चाहिए, आपका सोच एग्जाम के साथ पैरेलल रहना चाहिए। अगर सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सेट का जो क्वेश्चंस उसको एनालाइज कीजिए, अगर नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वी आर हियर, क्योंकि अपकमिंग वीक पे आने वाला है आपका सेट का एनालिसिस। मैं और शुरोभी मैम मिलकर आपका पूरा सेट एग्जाम जो होने वाला है, स्पेशली फॉर इमेज सेट स्टूडेंट, हर एक सेट आएगा तो हम करेंगे, तो सोचने का कोई जरूरत नहीं है। वेस्ट बंगाल सेट बोलिए, गुजरात सेट बोलिए, कोई भी सेट, तमिल कर्नाटका सेट इज कमिंग सून। तो जो भी है, देखिए आपका जो इमेज सेट है उसका एनालिसिस आने वाला है। रूपाली, यू आर फ्रॉम इमेज सेट एस्पायरेंट एज यू हैव टोल्ड मी। तो क्या है, इमेज सेट का पूरा एनालिसिस, कितना मार्क्स रहता है कौन टॉपिकों से, क्या करना होगा आपको, ऑल द सजेशन विल गिव यू। आपको सोचने का कोई भी जरूरत नहीं है। फ्री टाइम पे, प्रिपरेशन के बाद जो फ्री टाइम रहेगा, तो तब आप क्या करना, उस टाइम पे आप वो वीडियो को वॉच कीजिए, एंड प्लीज फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।
ओके, इट्स अ ग्रेट थिंग दैट वी आर अटैच्ड विथ ईच अदर। आपके साथ जुड़े रहकर बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, लेकिन दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड, अगर आप और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वार्ता को, जो वार्ता हम इधर से दे रहे हैं, द नॉलेज वी आर स्प्रेडिंग, द इंफॉर्मेशन वी आर स्प्रेडिंग, इफ यू कैन शेयर इट, और उसमें से एक भी स्टूडेंट को अच्छा हो गया, कुछ 2 मार्क्स आ गया, सोचिए, दैट इज द एज ऑफ फ्री लर्निंग, फ्री एजुकेशन। तो जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट, इफ यू कैन शेयर इट, देन इट विल बी अ ग्रेट थिंग। ओके, so thank you students again, all the best। so this series is over now, लॉजिकल रीजनिंग वाला जो सीरीज था, इसके बाद कभी भी हम लाइव आएंगे तो यू विल गेट इन्फॉर्म। लेकिन आपके लिए द अपकमिंग वीक फ्रॉम मंडे, प्लीज फॉलो आवर चैनल। उस चैनल पे आपका इमेज सेट का पूरा 8 to 10 वीडियोस आएगा, जिसमें बहुत सारा चीज कवर करने जा रहे हैं हम। नॉट ओनली दैट, कौन सा टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो करने से आपको 60 मार्क्स आ जाता है, दोस विल कवर। मंडे पे ये सीरीज नहीं रहेगा, लाइव नहीं रहेगा, बट यू विल गेट वीडियोस, यू विल गेट वीडियोस। तो उसके बाद वी आर प्लानिंग फॉर अनदर लाइव। आपका रिसर्च एप्टीट्यूड वाला जो सोच थे वो भी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड। so just wait for few 2-3 days, so it will just come, I'll tell you। so let us just go for the comment system। thank you। Shweta is saying thanks sir, you are most welcome। Shweta, Swali, Swati, Swati Monday पे क्लास नहीं है। I am uncertified is saying thank you for your amazing lecture series week sir। I am uncertified, thank you also, you got certain good answers and you are the man of the match, as well as we can announce you as the man of the series। yes, right, thank you for that। I am successful in that point of view। देखिए, हम जो टीचर्स होते हैं, या प्लीज सेंड द टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज आईएफएस एप्टीट्यूड का जो सपोर्टिंग टीम हो, आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भेजिए, क्योंकि ये वाला पीडीएफ मैं डालने वाला हूं, कल मैंने भेज दिया था, यू विल गेट इट सून। आप टेलीग्राम ग्रुप पे अगर हो तो आपको मिल जाएगा ये वाला पीडीएफ। थैंक यू, थैंक इट्स हेल्पफुल सोनाली। या सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू टू ऑल, आपको भी थैंक्स है मेरे तरफ से, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपका एग्जाम अच्छे से हो। आप यूट्यूब कमेंट से हमसे जुड़ सकते हो, बताइए आपका क्वेश्चंस, आपका क्वेरीज, विल बी देयर फॉर यू, एंड प्लीज शेयर आवर चैनल, होप विल ग्रो टुगेदर। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। सी यू देयर सून, गुड बाय। ओके, सी यू देयर सून, गुड बाय एंड टेक केयर। गुड बाय एवरीबॉडी।